Dear teachers, it is such a heartening moment for all of us at Tech Mahindra Foundation and EDMC that we have initiated a new venture, that is cyber safety and security workshop. इससे पहले कभी भी साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम लोगों ने कोई भी वर्कशॉप या ट्रेनिंग नहीं करी थी, लेकिन सीमा मैम के इनिशिएटिव से ही ये वर्कशॉप हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही टाइमली है. व्हेन वी आर हैविंग ऑनलाइन ट्रेनिंग विद द चिल्ड्रन एज वेल एज हम बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क करते हैं ऑनलाइन, तो आज साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. तो वी वेलकम डॉक्टर सीमा शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट EDMC. मैम, आपका आना ही इम्पॉर्टेंट है, और मैम टीचर्स को आप 2 शब्द कहें. और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इससे पहले हमारे 2 फैसिलिटेटर से. आज के फैसिलिटेटर हैं जेरिन थॉमस, और श्वेता उनके साथ होंगे जो हैंड वेव कर रहे हैं, श्वेता पाठक, जो मुंबई से जुड़ी हैं. तो थैंक्स अ लॉट मैम, एंड प्लीज प्रोसीड. मैम, सीमा मैम. Very good morning to one and all present for this seminar. I am in Krishna Nagar F Block School, presently doing inspection because of reopening of the schools today. 2 schools are running over here, Krishna Nagar A and Krishna Nagar F. At the same time, we are having cyber crime workshop for the teachers. So I hope you all people understand what cyber crime is and how to do prevention, how to take preventive measures. We all are digital now. We all are using laptop, mobiles, and even at home, when we are using TV sets, we are connecting Airtel or whatever Wi-Fi cables we have. So basically, we should not use our own family details, our own passwords, our own OTPs whenever we receive any unknown call, a call from any unknown number. We should not share any information with respect to our school children, with respect to our personal perspectives. This is what cyber tells us. Because whatever information we are sharing on the WhatsApp, on the Facebook, or through emails, we can be tracked down where we are as per our location. Our family details are all available on our mobiles, in our laptops, in our emails. So if we are sharing any OTP, any password to any unknown number or a person to whom we do not know what type of information he can use, he can mishandle, he can use in a manner which is not legally allowed, is being taught in all these workshops. It is a 4-day workshop. For example, if I quote the example of our license or ID card, we are maintaining our passport, our license, our ID card very carefully. We are keeping it safely. But by chance, if we happen to lose it or lost it somewhere, we immediately go for a FIR. FIR is lodged or registered, and whenever we happen to apply for a new, it is always mentioned duplicate copy or a new serial number, a new continuation number is allotted, so that it is very clear that the previous number license, previous number ID card, or previous number passport stands cancelled. That is what we are using manually. In the same manner, the information technology is very advanced. We have started learning maybe due to COVID-19, and we do not know ins and outs, the positive things we are learning, but how it can be mishandled, how it can be exploited by any XYZ, we need to learn. So Tech Mahindra Foundation officers, they were requested to organize this workshop for all the teachers
I wish all the best to all my staff members, all my teachers, and to Tech Mahindra facilitators and Asif Akhtar. Thank you very much. Since I am in inspection, I will not take much of the time. Once again, thank you. Thank you so much, Seema ma'am. It was such a pleasure to listen to you once again in our one of the workshops. And it was all due to your initiative that we have started this new program of cyber safety and security. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Jarin and Shweta, now it is your time. You can introduce briefly yourself and then you can proceed. थैंक यू आसिफ जी. गुड मॉर्निंग टीचर्स. उम्मीद है कि सबको हिंदी समझ आता होगा, तो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रखेंगे लैंग्वेज में. तो अगर किसी को कुछ बात समझ नहीं आई इंग्लिश में, तो आप प्लीज चैट बॉक्स पर वो लिख सकते हैं, ताकि हम उसको आपको बेहतर तरीके से समझा पाए. तो थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू आसिफ जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. तो मैं अपने बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, तो मेरा नाम जैरिन थॉमस है. मैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन के नोएडा ऑफिस में काम करता हूं. और आज के जो सेशन है, आज और कल का जो साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का सेशन है, वो मैं ही लीड करने वाला हूँ. और मेरे साथ मेरी टीममेट है श्वेता. तो श्वेता, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें. Thank you, Jarin. Thank you, Asif ji. Thank you, Seema ma'am, for the wonderful introduction. अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ अपने आप को, तो मैं मुंबई ऑफिस में से बात कर रही हूँ आपसे. और मेरा नाम श्वेता पाठक है. अगले 4 दिनों तक हम सब साथ में सीखने वाले हैं. तो ऑल द बेस्ट आप सभी को. उम्मीद है आपको ये वर्कशॉप बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू जेरिन. You can start now. So yes. Good wishes, Jarin, Shweta, and the entire backend team, Vishal, Vitupan, and the entire team. Thank you, Asif ji. Thank you, Asif ji. So आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं एजेंडा से. तो श्वेता, आप नेक्स्ट स्लाइड में जी. तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का नहीं, इनफैक्ट 4 दिनों में जो हम टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, वो है साइबर स्पेस, और साइबर स्पेस का हम हिस्सा कैसे है, या उसका हम उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे. दूसरा है डिजिटल कोशेंट नाम का एक बहुत बड़ा शब्द जो आपको लग रहा होगा. उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल कोशेंट क्या होता है, और उसको हमें किस तरीके से देखना है, और खुद का डिजिटल कोशेंट कैसे बढ़ाना है. तीसरा डिजिटल सिटीजनशिप. तो इसके बारे में भी बहुत गहराई से सीखेंगे, और डिजिटल सिटीजनशिप के क्या क्या हिस्से हैं और क्या क्या चीजें मिलकर डिजिटल सिटीजन बनते हैं, उसके बारे में भी हम सीखेंगे. ऑनलाइन रिस्क, जैसे सीमा मैडम बता रही थी कि किस तरीके से आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और हम कोविड-19 अचानक आया और हमें सब कुछ, जितने भी हमारी टीचिंग है, हमारे ऑनलाइन पेमेंट है, सब कुछ हम ऑनलाइन ही करते हैं. तो उसकी वजह से काफी सारी रिस्क आ गए हैं. तो उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है वो रिस्क, क्या क्या वो खतरे हैं, और किस तरीके से हमें उस खतरों से खुद को बचा कर रखना है. और इसी के साथ साथ, क्योंकि क्लासेस और बाकी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो जो हमारे घर के जो बच्चे हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन माध्यम का ज्यादा उपयोग करते हैं. तो किस तरीके से बच्चों को हम उनके स्तर पे जाकर समझाएं कि ऑनलाइन में खुद को किस तरीके से बचाना है, कैसी कैसी चीजों से उनको दूर रहना है, इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे. और सबसे आखिरी में हम साइबर क्राइम, जैसे सीमा मैडम ने बताया कि साइबर क्राइम आजकल एक बहुत बड़ी चीज हो गई है ऑनलाइन चीजों के बढ़ने की वजह से, उसके बारे में जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको रिपोर्ट करें, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, क्या क्या तरीके होते हैं उसको रिपोर्ट करने के, और उसके आगे आपको कहाँ से समाधान मिल सकता है. तो ये बेसिक हमारे 4 दिन के ट्रेनिंग का एजेंडा है. तो उसमें से कुछ हिस्से हम आज करेंगे. तो लेकिन हम सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कभी भी कोई डाउट हो या सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स का उपयोग करें. और जब मैं स्लाइड समझाने के बाद आपको बोलूं, तब अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं, या अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब देंगे. और
हमारा सेशन शुरू होने से पहले हम एक बेसलाइन सर्वे करते हैं कि जिससे हमें ये समझ पाए कि आपकी अभी की नॉलेज कितनी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में। और हम जब ट्रेनिंग खत्म होगा लास्ट चलो डे जी, के मैं उस दिन एंड गई में थी हम और एक मैं और पूछती गई, ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन एक लंच और टाइम हो गया और प्लीज टीचर्स खुद को म्यूट रखें। हाँ, तो और लास्ट डे में हम सेशन खत्म होने के बाद एक और एंड लाइन लेंगे जिससे हम समझ पाए कि आप टीचर्स ने कितना समझा है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम किस तरीके से हमारे जो कंटेंट है, जो हमारी ट्रेनिंग है, उसको सुधार पाए। तो श्वेता, हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। तो हम अभी 10 मिनट का समय लेंगे। एक बार आपसे हम एक लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ चैट पर। तो सभी टीचर से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग लिंक पर जाएं और उस लिंक के कुछ सवाल है उसके जवाब दे दें, और उसके बाद चैट बॉक्स में लिख दें जब आपका जवाब आप दे दें तब। श्वेता, प्लीज कंफर्म करना अगर आपको लिंक दिख रहा है तो। हाँ, करती हूँ। हाँ, इट्स विजिबल जेरिन, दिख रहा है। जी, तो टीचर्स प्लीज आप सभी लोग इस लिंक को क्लिक करें और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं आंसर दें, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सभी टीचर्स को कि ये जो फॉर्म है, इसमें आपका नाम या स्कूल का नाम कहीं पे नहीं मांगा जा रहा है। तो अगर आप कोई भी सवाल का जवाब देंगे तो वो हमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि आप आपका स्कूल की डिटेल्स वगैरह नहीं पता तो चल पाएंगे। तो बेहतर है कि आप सभी टीचर्स उसका जवाब जरूर दें। हमारे पास 85 टीचर्स के आसपास जुड़े हुए हैं, तो 10 मिनट के अंदर सभी टीचर्स प्लीज वो फॉर्म भर दें। अभी हमारे पास 12 टीचर्स का रेस्पॉन्स आ चुका है, तो बाकी टीचर्स भी प्लीज फॉर्म भर दें और 10 मिनट के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हेलो हेलो जी हाँ जी मैम। मैम। हेलो सर, जी मैम। एक्चुअली फॉर्म में तो पूरी डिटेल फिल हो रही है और मेरा लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं भरा नहीं जा, डेट नहीं है, वो डेट ही भरी जा रही मैम सर इसमें ना। जी मैम, वो आप हाँ भर जी नहीं सर। पा रहे हैं या फिर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं? सर वो डेट नहीं फिल हो पा रही इसमें ना, मेरे फॉर्म में। अच्छा जी मैम, आप फोन से जुड़ी हैं कि लैपटॉप से? सर फोन से। मैम मैं आपको विशाल, आप प्लीज मैम को एक बार व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर दीजिए, और उसके बाद फिर अगर नहीं हो पाता तो हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। विशाल। ठीक जी ठीक है सर। अनुराधा मैम, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है सर, ओके सर, ठीक। 5 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारे पास सिर्फ 15 टीचर्स के ही रेस्पॉन्स आए हैं। बाकी टीचर्स प्लीज जल्दी से फॉर्म भर दें ताकि हम फिर आगे बढ़ पाए। हेलो, हाँ जी अरविंद जी। जी सर, ठीक है, ओके। सर गूगल फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा? सर मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक भेज रहा हूँ फिर से, एक बार आप वो चेक कर लीजिए। ठीक है सर। जी, अभी मैंने जस्ट भेजा है, एक बार आप देख लीजिए आपको मिला कि नहीं। ठीक है सर। जी, अभी तक अदिति चहल मैम, संजू मेहरा, सविता शर्मा, बिमलेश, शाहीन शमीम, हीरावती, नेहा मलिक, लीनू जैन, हर्ष शेहरावत, इन सभी टीचर्स का फॉर्म मेरे पास आ चुका है। बाकी टीचर्स भी जल्दी प्लीज भर दें। हम 11:34 में सेशन आगे जारी रखेंगे। खुशबू मैम का भी आया है अभी, और दीपिका मैम का भी फॉर्म मेरे पास अभी सबमिट हुआ है। सर फॉर्म नहीं खुल रहा है। हेलो। जी विशाल, एक बार आप मैम को व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मैम आप अपना नाम बताएंगे एक बार? अभी मेरे पास पायल मैम, शिल्पी, विनोद, आदेश और सुनील सर, इनके और फॉर्म्स आ गए हैं। भी 2 मिनट इनका भी और फॉर्म बाकी नहीं रानी? खुल रहा है। हेलो जी। मैम, आपका नाम? पूनम। पूनम जी, आप ना दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि आपका फॉर्म बाकियों का खुल रहा है और आप ही का नहीं खुल रहा है। एक बार ट्राई कर लीजिए ताकि आपका भी फिल हो जाए। ओके। सर प्लीज आप एक बार लिंक सेंड कर देंगे दोबारा। मैं उसको सबमिट नहीं कर पाई, हाफ फिल हो गया। जी जी मैम, मैं अभी दोबारा भेज देता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर एक्चुअली जी। मैंने अभी ज्वाइन की है। वो मैम इसमें डेट में, सर्वे डेट में कौन सी डेट आएगी सर? मैम वो आज का आप डेट डालिएगा, 29 नवंबर। ओके
Thank you. जी हेलो, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर सर। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, अभी दरअसल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी मीटिंग रिगार्डिंग कि किस तरह से ज्वाइन करना है, जी तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे कि अभी क्या क्या मेन की पॉइंट्स जो आपने बताए हैं। जी, तो सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल जूम पर आपको आज और कल जो टाइमिंग है वो है 11 से 1 बजे, जी सर। और परसों और नर्सों की टाइमिंग है 2 से 4 बजे। और ओके आप सर। जो टीचर्स आज जुड़ रहे हैं उन्हीं टीचर्स को बाकी तीनों दिन और जुड़ना रहेगा, तो ये अच्छा सर। मेजर इंस्ट्रक्शन है। अच्छा हेलो मतलब सर। ओके। जी सर मेरी डेट फिल नहीं हो पा रही है, फॉर्म तो फिल हो रहा है लेकिन डेट नहीं फिल हो रही, इसलिए सबमिट नहीं हो पा रहा वो फॉर्म। जी, मैम एक बार आप फोन से एक बार ट्राई करिएगा उसको, दोबारा एक बार आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि कई टीचर्स का इश्यू ये आया था, लेकिन वो उनके कुछ क्रोम में या फिर वेब ब्राउजर में कुछ इश्यू है, इस वजह से वो नहीं फिल हो पाता है। तो या तो आप दूसरे फोन से ट्राई कर लीजिए ये लिंक लेकर, या फिर आप दोबारा एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। ठीक है मैम। चलिए, अभी करीब मेरे पास 35 टीचर्स के रेस्पॉन्स आए हैं, तो उम्मीद है बाकी सभी टीचर्स भी भर ही रहे होंगे। लेकिन हम सेशन में और ज्यादा नहीं रुक सकते, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्वेता, हम आगे चल सकते हैं जी। हेलो। जी हेलो। मैम। सर वो एक्चुअली उनको उसमें दिक्कत आ रही थी ना, मेरे ख्याल से वो शायद पहले एमएम है, डीडी है, शायद वो उल्टा भर रही होंगी, पहले डेट भर रही होंगी फिर मंथ भर रही होंगी, शायद इस वजह से दिक्कत आ रही है उनको आगे जी प्रोसीड जी करने में। जी, थैंक यू मैम। तो प्लीज टीचर्स इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर फॉर्मेट mm/dd/ईयर है तो वो आप उसी हिसाब से भरें एक बार देखकर, वरना वो इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। जी, थैंक यू मैम। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेनिंग का एक्चुअल जो जिसके लिए हम सब साथ में आए हैं, अब वो हिस्सा शुरू होता है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक शब्द के बारे में पूछना चाहूंगा, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस एक एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हमने सुना होगा ऑनलाइन, या फिर जब कोविड आया था, जब हमारी काफी सारी चीजें हम ऑफलाइन से, यानी कि जब कागज से हम ऑनलाइन माध्यम पे आ गए थे, तो काफी सारी चीजें हम नई नई चीजें हमें सुनने को मिली थी। उसमें से एक एक शब्द है साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या है, कोई टीचर बताना चाहेंगे? चाहे तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, या आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जब आप अनम्यूट करेंगे तो प्लीज अपना नाम और स्कूल का नाम बताइएगा, जिससे हमें पता चल पाए आप कौन है। तो कोई टीचर बताना चाहेंगे उनको क्या लगता है साइबर स्पेस का मतलब क्या है, या क्या समझते हैं वो इस शब्द से? Hello, sir. My name is Shaheen Shami, and I'm from Lakshmi Nagar Mangal Bazar School. जी मैम। साइबर स्पेस का मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जब हम ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होते हैं डिजिटली एक दूसरे, so that's the cyber space. जी जी जी, थैंक यू मैम। और कोई टीचर बताना चाहेंगे इसके ऊपर, उनको क्या लगता है क्या चीज है ये शब्द? शाहीन मैम ने बहुत एक बढ़िया पॉइंट बताया, लेकिन और कोई टीचर भी हो जिसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो, या फिर कुछ और तरीके से समझाना चाहते हो? Good morning. जी जी मैम। Mamta from EDMC Chilla Saruda First School. जी According to me, I think cyberspace is I think it's a computer world. It's a virtual computer world, right? जहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, एंड जो डाटा एक्सचेंजेस होते हैं इट happens through online communication. So it's a space, it's a I think can say it's a network where we can communicate online through a very large space of computer network. जी, थैंक यू मैम।
आप दोनों टीचर्स ने बिल्कुल सही बोला, शाहीन मैम और ममता मैम, कि साइबर स्पेस एक ऑनलाइन एक दुनिया है। जैसे हम हमारे सामने जो फिजिकल दुनिया है, जो जिसे हम जहाँ पे हम बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो या घर पे बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, ये हमारी एक उसी तरह एक ऑनलाइन दुनिया भी है जिसको हम एक्सेस करते हैं कई सारे कामों के लिए। बट उस ऑनलाइन दुनिया को एक्सेस करने के लिए हमें 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। एक तो है लोग, यानी इंसान, हम, मैं, आप। हम इस दुनिया का जो डिजिटल दुनिया है उसको हमें एक्सेस करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, जैसे हमारा फोन है, जिसके माध्यम से मुझे लग रहा है काफी सारे लोग आज हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसके बिना हम डिजिटल माध्यम को के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर, और तीसरी चीज है सर्विस, कि हम उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या फायदा उठाना चाहते हैं। तो जैसे आज आप सभी लोग जूम कॉल पर ज्वाइन हुए हैं, तो जूम कॉल के माध्यम से आप ऑनलाइन या डिजिटल कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। आप यहाँ जहाँ पे बैठे हैं वहां से आप ऑनलाइन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इन चीजों को, तीनों चीजें जब साथ आती हैं तभी हम इसको साइबर स्पेस बोलते हैं। सभी टीचर्स 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। सॉरी। तो ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तब साइबर स्पेस होता है। तो साइबर स्पेस का, जैसे मैंने अभी आप सभी लोगों को समझाया, आपको क्या लगता है आप साइबर स्पेस का क्या क्या उपयोग करते हैं? कोई टीचर बताना चाहेंगे मुझे? जैसे मैंने समझाया कि हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई सर्विस का उपयोग करते हैं तो वो साइबर स्पेस कहलाता है। तो आपको क्या लगता है आप साइबर स्पेस का उपयोग किस तरीके से करते हैं? कोई भी उदाहरण दे सकते हैं टीचर्स, अनम्यूट या चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। सर जो भी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हो, लाइक जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, किसी डिस्कशन, जैसे आपने अभी कहा कि जूम मीटिंग में हम एक दूसरे से सारी चीजें यूजेस ऑफ साइबर स्पेस ही हैं। थैंक यू शाहीन मैम। और कोई टीचर कुछ बताना चाहेंगे? If I just want to ask, if you are taking a class through Zoom app, through Google Meet, is it also considered in I think cyberspace or not? It's a question. मैम उसका जवाब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन बाकी सभी टीचर्स एक बार बता दें कि वो किस तरीके से साइबर स्पेस का उपयोग करते हैं, फिर आगे आपके सवाल का जवाब टीचर्स ही दे देंगे। मैम, may I know your name please? ममता। मैम एक्चुअली आपका जो नाम लिखा रहा है हमारे जूम में वो Oppo F17 लिखा रहा है। तो अगर जी जी आप ठीक है, अब ठीक है जी। थैंक यू विशाल। तो जैसे शाहीन मैम और ममता मैम ने बताया कि साइबर स्पेस का एक तो हम काफी सारी ऑनलाइन चीजों का उपयोग, ऑनलाइन में जो भी चीजें हम करते हैं, जैसे कि चाहे वो व्हाट्सएप हो या जूम हो, ये सभी हम साइबर स्पेस का ही हम कहीं ना कहीं कुछ हिस्से का हम उपयोग कर रहे हैं। तो चाहे आप फेसबुक उपयोग करें, जिसके माध्यम से आप अपने साथियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोने दुनिया के, वो किसी भी कोने में हो। दूसरी चीज है, चाहे आप बिजनेस या अपने ऑफिशियल कामों के लिए जब आप जुड़ते हैं, जैसे आज हमारे कॉल में भी ये ऑफिशियल एक ट्रेनिंग हो रही है, तो इस ट्रेनिंग में जब आप जुड़े हैं जूम के माध्यम से, ये भी एक साइबर स्पेस का हिस्सा है। तीसरा है, जब आप कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान आप मंगाएं, और उसके बाद जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो भी साइबर स्पेस का हिस्सा है। चौथी चीज है, जैसे गूगल ड्राइव, आप में से काफी सारे टीचर्स गूगल का फोन यूज करते होंगे, एंड्रॉइड फोन।
और उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने फोटोज या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स को आप गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, तो वो भी साइबर स्पेस का हिस्सा है। तो जितनी भी चीजें आप ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो एटीएम मशीन ही क्यों ना हो, क्योंकि एटीएम मशीन से जब आप पैसे निकालते हैं तो आपके बैंक के खाते में जितना आपका बैंक बैलेंस है वो घटता है। तो वो किस तरीके से हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि आपके खाते में से पैसे आ रहे हो आपके पास, वो कहीं ना कहीं वो एक डिजिटल माध्यम में वो एक डेटा होता है जो रखा गया है, और जब आप उसमें पैसे डालते हैं तो वो डेटा बढ़ता है, और जब आप पैसे निकालते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो वो पैसा घटता है। तो वो भी एक डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा है, और वो भी साइबर स्पेस में एक छोटा सा हिस्सा है। जी श्वेता, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक तो सुंदर कलर करा है मेरा, वेरी गुड। श्वेता जी, तो बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल लाइफ जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम, सर्विसेज, चाहे आप कोई गवर्नमेंट बिल भर रहे हैं, कोई आपका बिजली का बिल है, फोन का बिल है, गैस का बिल है, या अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भी भर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी साइबर स्पेस का ही हिस्सा है। और सबसे लास्ट में जो हमारा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसका मैंने आपको अभी समझाया। तो ममता मैम, उम्मीद है आपका आपके जी सवाल का जवाब मिल गया रहेगा। I was going to say that I have received my answer. जी Thank you. थैंक यू मैम। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन जो दुनिया है इसके हमें हमारे लाभ या हम जिस तरीके से उसका फायदा उठाते हैं उसके बारे में जाना, कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परचेजल, ये सब चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी सारा उपयोग करते हैं। लेकिन क्या इन्हीं सब अच्छी चीजों से ही साइबर स्पेस बना है, या इसमें कुछ बुराइयां भी है, बुराइयां या फिर हम कुछ खतरे हैं जिसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और जिससे हमें बचकर रहना चाहिए? तो अब आगे उसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हमें ये चीज समझना रहेगा कि ये जो डिजिटल दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ये चीज क्या है। उसके बारे में जब जानेंगे तभी हम और गहराई में उसके काफी सारी चीजों के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ और शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एक शब्द IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट। तो सभी टीचर्स इस शब्द से काफी अच्छे से परिचित होंगे। तो कोई टीचर ये अनम्यूट करके प्लीज बताएंगे कि आप IQ से क्या समझते हैं? हेलो सर, दिस इज आंचल फ्रॉम कृष्णकुंज स्कूल। जी, IQ का हमने आंचल। साइकोलॉजी में फॉर्मूला किया था MA/CA 200 वाला, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी एक्चुअल एज होती है, उससे आपका IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। जी जी जी, थैंक यू आंचल मैम। और कोई टीचर, शायद सैमा मैम अनम्यूट है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं तो 3 ही बच्चे दिखाऊंगा। और कोई टीचर कुछ बताना चाहेंगे कि IQ से वो क्या समझती है, क्या समझते हैं? यस सर, फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आई एम अ काउंसलर, आई एम नॉट अ टीचर, और जी। IQ पे ही हमारा बेसिकली जो भी काम होता है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की मतलब जो एक पर्सनालिटी होती है, उनका कितना नॉलेज है, इस बेसिस पे हम जज करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन अगर अभी रिसेंट स्टडीज देखें तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा हो वो मैथ्स में भी अच्छा हो। और जैसा कि मैम ने बताया कि IQ का जो फॉर्मूला है MA/CA, उसमें हम बच्चे की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 7 साल का हो, उसकी एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 7 ईयर्स है, तो जरूरी नहीं है कि उसका मेंटल एज भी 7 ईयर्स का हो। इसी बेसिस पे हम लोगों का IQ मेजर करते हैं। थैंक यू शाहीन मैम और आंचल मैम। तो आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला के साथ कि IQ क्या चीज होती है, लेकिन बहुत सरल भाषा में मैं बाकी सभी टीचर्स को अगर मैं समझाना चाहूँ तो IQ का मतलब ये रहता है कि अगर आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा या कोई भी सिचुएशन रखा जाता है, तो आपकी जो क्षमता है
कि उसको, उस सिचुएशन या उस इंफॉर्मेशन को कितनी आप गहराई से समझते हैं, उस चीज को हम आईक्यू बोलते हैं। तो उदाहरण सहित आपके पास सामने कोई भी सिचुएशन आया या कोई भी आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की गई, तो आप उस चीज को कितनी गहराई से उसके बारे में सोचते हैं, आप उसकी चीजों को समझ पाते हैं, उसको आईक्यू बोलते हैं। अब इसके बाद एक और शब्द आता है ईक्यू। एक आईक्यू तो उम्मीद शायद 10-20 साल पहले सिर्फ आईक्यू के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ करीब 10-15 साल पहले एक और नया शब्द आया, वो है ईक्यू या इमोशनल क्वोशेंट। तो आई गेस काफी सारे टीचर्स ने साइकोलॉजी भी किया रहेगा, तो ईक्यू के बारे में भी आपने सीखा रहेगा। तो कोई टीचर अनम्यूट करके बताना चाहेंगे ईक्यू कैसे, क्या वो समझते हैं? शाहीन मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम। EQ जो वर्ड था वो गोल्डमैन ने दिया था, क्योंकि शुरू से जितनी भी पुरानी स्टडीज रही हैं उनमें IQ पे फोकस था, मगर गोल्डमैन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का रोल जो है वो हमारे लाइफ में ओनली 20% है, और EQ यानी इमोशनल क्वोशिएंट यानी हम बाकी चीजों से खुद को कितना इमोशनली रिलेट कर पाते हैं और कितना अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, इसका रोल हमारे लाइफ में 80% होता है, और यही 80% डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। अगर बहुत ही जनरल टर्म में बात किया जाए तो जिसे हम प्रैक्टिकल होना भी अगर एक पॉइंट पे कहें तो वो हमारा इमोशनल क्वोशिएंट है कि आप कितना किसी चीज को फील कर पा रहे हो और कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो। थैंक यू। थैंक यू शाहीन मैम। और कोई टीचर ऐड करना चाहेंगे शाहीन मैम के पॉइंट्स को? Yes, I want to add जी मैम। that EQ, as you know, it's emotional intelligence, and it's more over about the way you are managing your emotions, so that you can just relieve yourself from the stress, or so that you can perform well in today's school also, that we are observing that we are more focusing we are focusing more on the emotion part of the child instead of focusing on the intelligence part, because now we are from the studies we are going to observe that the more we are connected emotionally through the child, the more we have a stronger relationship with the child through emotions, the more we can succeed in our personal and professional both the life. So that is the basic need of emotional intelligence in our schooling life and everywhere. जी, थैंक यू शाहीन मैम और ममता मैम, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया ईक्यू को काफी डिटेल में। लेकिन एक सरल भाषा में अगर मैं समराइज करूं आप दोनों के पॉइंट्स को, तो ईक्यू इमोशनल क्वोशिएंट एक ऐसी चीज है जो अगर आप, जिससे कि आप खुद के इमोशंस को, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो खुशी हो, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम कई बार लोगों को कहते हैं कि आप बहुत टेंशन में हैं, तो जो लोग अपने स्ट्रेस को या टेंशन को उस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और अपने इमोशंस पर उनको कंट्रोल नहीं रहता, वो काबू में नहीं रख पाते अपने इमोशंस को, तो उन लोगों का ईक्यू हम बोलते हैं कि कम है, एवरेज से कम है। और जो लोग काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी खुद को संभाल पाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनकी ईक्यू ज्यादा है। तो अगर सरल भाषा में बोले तो ईक्यू का मतलब ये है। अब एक और हमारे पास शब्द आ गया है जो करीब 5 साल पहले आया था, वो है DQ यानी डिजिटल क्वोशिएंट। अब ये बहुत नया एक शब्द है। ये शायद हमारे टीचर्स ने शायद साइकोलॉजी थ्योरी जब आपने अपने टीचिंग स्टडीज के टाइम पे सीखा रहेगा, तब शायद DQ नाम का शब्द आपने सुना भी नहीं रहेगा, ना मैंने सुना था 2 साल पहले। लेकिन अब DQ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। IQ, EQ और DQ तीनों ही एक ही लेवल के माने जाते हैं। तो DQ के बारे में किसी ने सुना है? डिजिटल क्वोशिएंट के बारे में कोई टीचर बताना चाहेंगे कि अगर उन्होंने सुना है तो क्या समझते हैं, या नहीं भी सुना है तो DQ एक डिजिटल क्वोशिएंट एक ऐसा वर्ड है जिसका आप अंदाजे से भी आप बता सकते हैं क्या आप समझते हैं? Yes, I think it's more about how much you are capable of, or
I think capable of understanding the digital world, maybe comprehend it. जी, थैंक यू मैम। और कोई टीचर? ममता मैम और शाहीन मैम ही बोल रहे हैं, आई गेस। उसके अलावा और किसी टीचर का आवाज सुनने का मौका नहीं मिला अभी तक। तो प्लीज बाकी सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी अनम्यूट करके बोलें। मैम इट्स लाइक हाउ मच रेडी यू आर किसी भी डिजिटल चीज को लर्न कर नई चीज को लर्न करने के लिए, एंड मे बी द यू कैन से हाउ मैच्योर और हाउ डिजिटली मैच्योर यू आर। जी, थैंक यू मैम। मैम आप अपना नाम भी एक बार बताएंगे? आपका नाम पोको X3 लिखा रहा है हमारे जूम कॉल पर। कंचन कंचन फ्रॉम कंचन। जी, थैंक यू मैम। विशाल, आप प्लीज नाम चेंज कर दीजिए कंचन मैम का। कंचन नाम है? जी जी, कंचन मैम। ठीक है। सो और कोई टीचर कुछ ऐड करना चाहेंगे या हम आगे बढ़े? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल क्वेश्चन, जैसे मैम कंचन मैम और ममता मैम ने बताया कि एक डिजिटल दुनिया की उनको कितनी अवेयरनेस है या नॉलेज है, वो आपके डिजिटल क्वेश्चन वो कहलाता है। तो यदि जैसे अगर हम बोले कि हम अपने दादा दादी है, नाना नानी है, जिनको शायद फोन भी चलाना नहीं आता है अच्छे तरीके से, अगर हम उनको देखें तो उनके सामने आजकल हमारी जो डिजिटल क्वेश्चन है वो काफी ऊंची है या उनसे काफी बड़ी है संख्या में। क्यों? क्योंकि हमें डिजिटल माध्यम का उपयोग करना हम जानते हैं, हम उसकी चीजों के बारे में समझ पाते हैं कि व्हाट्सएप क्या चीज है, व्हाट्सएप के अलग अलग फीचर्स क्या है अगर मैं उदाहरण दूं तो, या फेसबुक क्या चीज है, या यूट्यूब क्या है, या जूम क्या है। ये सब चीजों के बारे में हमारे शायद जो घर पे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं जानते हैं। तो डिजिटल क्वेश्चन, और दूसरी चीज, अगर हम आजकल के बच्चों से कुछ भी चीज पूछे ऑनलाइन चीजों के बारे में, तो शायद हमसे भी बेहतर तरीके से वो उसकी समझ वो रखते हैं। तो डिजिटल क्वेश्चन डिजिटल दुनिया की जो चीजें हैं उसके काफी सारे जो एलिमेंट्स है, जो हिस्से हैं, उसकी समझ आपको कितनी है और आप उससे अपनी जिंदगी को किस तरीके से और आसान बना सकते हैं, उसकी जो समझ है उसको हम डिजिटल क्वेश्चन बोलते हैं। तो डिजिटल क्वेश्चन के काफी सारे पिलर्स हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। श्वेता, हम आगे बढ़ सकते हैं? We have to do a poll, Visha, Jarin. जी 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 जी। तो मैं अभी एक छोटा सा एक पोल है जिसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में हम एक पोल करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। तो सभी टीचर्स के पास 1 मिनट का समय है, आपको उसमें से करेक्ट जवाब आपको क्लिक करना है और 1 मिनट के बाद मैं आपको उसके जिसके जवाब के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने लॉन्च कर दिया है। आप सभी के स्क्रीन में उम्मीद है कि ये पोल आ रहा होगा, तो प्लीज कोई टीचर मुझे कंफर्म कर सकते हैं अनम्यूट कर। श्वेता, आपके पास दिख रहा है स्क्रीन में? Yes, it's visible. जी जी, थैंक यू। जी, तो आप सभी लोग के पास 1 मिनट का समय है। Yes, sir, done. जी, थैंक यू मैम। बाकी सभी टीचर्स का भी हम एक बार वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दस सेकेंड और।
तो आप सभी टीचर्स को रेस्पॉन्सेस दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन में। तो सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन, यानी डिजिटल सिटीजन एक शब्द है, उसका आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लाइन है जो सबसे अच्छे से उनको उस चीज को दर्शाता है या समझाता है। तो 82% टीचर्स ने बोला कि someone who recognizes that there are rights and responsibilities associated with using the internet and other information technology। तो यही इसका सही जवाब है। तो एक डिजिटल सिटीजन वो इंसान है जिसके पास डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के नॉलेज या उसको उसकी जानकारी के साथ साथ ये भी वो समझे कि ये मेरा हक और मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको मैं अच्छी चीजों के लिए ही उपयोग करूं, और जिनको इस डिजिटल माध्यम का उपयोग करना नहीं जानते उनको सिखाऊं भी कि उसको किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। तो यही एक डिजिटल सिटीजन की डेफिनेशन है। इसके बारे में हम काफी गहराई में आगे बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो डिजिटल कोशेंट के बारे में हमने बात किया, उसके 3 पिलर्स हैं और उसका सबसे पहला पिलर है डिजिटल सिटीजनशिप, जिसके बारे में अभी आपने एक सवाल भी किया। तो डिजिटल सिटीजनशिप यानी आपकी क्षमता कि आप डिजिटल माध्यम का उपयोग करें एक जिम्मेदारी के साथ और एक ऐसे तरीके से जिससे सभी का फायदा हो। ये एक डिजिटल सिटीजन की एक डेफिनेशन है। दूसरा है डिजिटल क्रिएटिविटी, यानी अगर मैं आपसे 2 साल पहले अगर मैं पूछता कि आप में से कितने टीचर्स जूम यूज करना जानते हैं या फिर गूगल फॉर्म्स यूज करना जानते हैं या फिर गूगल ड्राइव या काफी अलग अलग जो नए नए टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं क्लासरूम टीचिंग में ऑनलाइन के जरिए, 2 साल पहले उम्मीद है कि शायद ही कोई टीचर हो जिनको इतने अच्छे से ये सब चीजें यूज करना वो जानते हो। तो ये सब जो क्रिएटिविटी आई है या फिर ये जो डिजिटल माध्यम में आप लोगों ने काफी सारी नई चीजें सीखी हैं, इसकी वजह से आपके जो स्किल है वो कहीं ना कहीं एनहांस हुई है। और दूसरी चीज, जो आप वर्कशीट्स ऑनलाइन भेजते हैं व्हाट्सएप या जूम या ईमेल में, ये सब चीजें ऐसी चीजें थी जो आप शायद 2 साल पहले नहीं करते होंगे, आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो जब आपने डिजिटल माध्यम का उपयोग करना सीखा तो आपने नई नई चीजें बनाई उसका उपयोग करने के लिए। तो इसी चीज को हम डिजिटल क्रिएटिविटी कहते हैं, जहां पे कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम का यूज करके नए नए चीजें सीखते हैं, करते हैं और दूसरे लोगों से भी वो चीजें शेयर करते हैं ताकि सब लोग मिलकर कुछ नई चीजें बनाएं। और तीसरा है डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके माध्यम से अगर मैं एक हेल्दी कंपटीशन की हम इस चीज को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये एक जो चाह होती है, इसी की वजह से हम काफी सारे नई नई चीजें हम खोज सकते हैं, हम बना सकते हैं डिजिटल माध्यम में। तो डिजिटल क्वेश्चन की ये 3 पिलर्स है जिसको अगर आप बेहतर तरीके से अगर आप करें, चाहे डिजिटल सिटीजनशिप हो उसकी अगर आपको बेहतर समझ हो, या आप क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाए डिजिटल माध्यम में, या आप डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस जिसके माध्यम से कि हाँ ये चीज को मुझे और बेहतर तरीके से कैसे मैं कर सकता हूँ, वो एक चाह जो होती है, ये तीनों चीजें आपकी डिजिटल क्वेश्चन को बढ़ाती है। अब हमने जैसे पहले बात किया डिजिटल सिटीजनशिप के डेफिनेशन के बारे में, लेकिन एक सिटीजनशिप एक बहुत एक बड़ा शब्द है, नागरिकता अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर पाए कि आप भारत के नागरिक हैं। कोई टीचर अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स पे बताना चाहेंगे कि नागरिकता एक से आप क्या समझते हैं, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वो क्या चीज होती है, या आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप सिटीजन हैं। बिल्कुल 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 सही बात। सर आपका नाम मैं जान सकता हूँ सर? सर अजय गुप्ता, दिलशाद नो ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू अजय सर। सो अजय सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी है जो आपको प्रूव कर पाए कि आप इस देश से जुड़े हैं या आप इस देश में पैदा हुए हैं या आप इस जगह पे रहते हैं काफी सालों से, तो आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है।
तो उसी तरीके से हम हमारी डिजिटल दुनिया में हमारी आइडेंटिटी क्या है, या फिर आप डिजिटल माध्यम में जब आप यूज करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास आइडेंटिटी होगी या होनी चाहिए। तो कोई टीचर बताना चाहेंगे कि अगर वो कोई भी चीज यूज करते हैं ऑनलाइन तो उनकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, जिससे कि वो डिजिटल सिटीजन बन पाए। जी जी मैम। सर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैम, आप अपना नाम भी बता दीजिए एक बार मुझे, आपका नाम नहीं सर पता। सीमा गुप्ता कृष्णा नगर डबल स्टोरी फर्स्ट। थैंक यू सीमा मैम, ईमेल आईडी बताया। और कोई डिजिटल आइडेंटिटी सर, है जो हम, बायोमेट्रिक आईडी। अगर हम मोबाइल यूज बायोमेट्रिक कर रहे आईडी हैं भी तो है। जी IME। जी, और कुछ? सर हेलो। जी जी सर बताइए। सर जैसे कंट्री कोड भी होते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, जैसे 91 लिखा आता है, वो भी शायद कंट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं मेरे ख्याल से। जी जी जी, कंट्री है, लेकिन हमारे देश में इतने सारे लोग हैं तो उसमें सर से कॉन्टैक्ट आपको कैसे पहचान नंबर, पाएंगे? सर IP एड्रेस हमारी आइडेंटिटी होती है डिजिटल। जी जी, आईपी एड्रेस भी है। और कोई अगर टीचर? मोबाइल यूज कर रहे हैं तो IME नंबर पे मेरा electrical आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड तो सर, लेकिन वो डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होगा ना, वो तो आपका फिजिकल आइडेंटिटी है। बेसिक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। फोन नंबर। हाँ फोन नंबर। जी जी जी, और दूसरी मैम आप और कुछ कह रहे थे? सर गूगल आईडी। गूगल आईडी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक गूगल यू आईडी से टीचर्स। हर चीज वो हो जाती है सर्च। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। सो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए। प्लीज आप खुद को म्यूट कर ले। जी। सो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए, जैसे जीमेल आईडी हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर हो, या बायोमेट्रिक आईडी हो, या हमारे बैंक, जो हम आजकल अगर यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी जो यूपीआई आईडी है, ये सब हमारी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, जिसके माध्यम से हमें एक तो डिजिटल दुनिया का एक्सेस मिल जाता है, और दूसरी चीज, अगर किसी और को ये जानना हो कि हम कौन है तो हमारी ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से हमें पहचान सकते हैं। तो डिजिटल आइडेंटिटी एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको डिजिटल सिटीजन बनना है तो वो आपकी सबसे बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, या वो आपको उस चीज के बिना आप डिजिटल सिटीजन नहीं बन पाएंगे। सो डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में अगर हम आगे बात करें तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी जिनके पास कुछ हक भी है और कुछ कर्तव्य और दायित्व भी है। तो जैसे आप देश के अगर हम जब हमारे पास कुछ हक होते हैं जो सबके पास है, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, हमें देश के प्रति हमें कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं जिसको हमें निभाना पड़ता है, जिससे हम एक देश के अच्छे नागरिक बन पाए। उसी तरीके से डिजिटल सिटीजन के भी कुछ हक होते हैं और साथ ही साथ कुछ कर्तव्य और दायित्व भी होते हैं। श्वेता क्लिक। सो जैसे हमने पहले भी बात की कि एक जिम्मेदारी के साथ और एक दूसरे को हम उसका फायदा पहुंचा पाए। अगर आपके पास नॉलेज है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यदि आप वो चीज खुद तक ही रखें और किसी और को ना बताएं, या फिर जिसको ना आता हो उसको ना सिखा पाए, तो वो आप एक अच्छे डिजिटल सिटीजन नहीं है। आप तभी अच्छे डिजिटल सिटीजन है जब आप वो चीज किसी और को भी साझा करेंगे, जब आप किसी और को भी समझाएंगे और उनको भी एम्पावर करेंगे कि वो भी ऑनलाइन माध्यम में अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाए। जी श्वेता, हम सारे पॉइंट्स क्लिक कर सकते हैं देन फिर एक साथ। जी, और इसी के साथ साथ कि अगर हम ऑनलाइन कोई भी चीज कर रहे हैं या फिर कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, तो इस चीज का नॉलेज होना कि ये जो डेटा जो हम भेज रहे हैं ये कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर जरूर होता है। जैसे उदाहरण सहित अगर मैं आपको बताऊं तो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, तो ईमेल जब आप भेजते हैं तो आप चाहे 10 या 20 साल बाद भी अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेक करेंगे तो आपके पास वो मेल होंगे जो आपने काफी पहले भेजा रहेगा। उसी तरीके से व्हाट्सएप चैट्स, जो आजकल काफी सारे जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में व्हाट्सएप चैट्स, जिसको हम आसानी से अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो खोज निकालते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो ये सब जो डेटा हम अपने डिजिटल आइडेंटिटी के माध्यम से भेजते हैं वो ट्रेस बैक होके हमारे तक आ सकता है। तो इस चीज का अंदाजा होना, नॉलेज होना, और उसी जिम्मेदारी के साथ हम काम करें कि हम ऐसी कोई गलत चीजें ना करें जिससे हमें बाद में हमारा नुकसान हो पाए। तो ये सब एक डिजिटल सिटीजन, एक अच्छे डिजिटल सिटीजन के गुण है।
श्वेता हम आगे बढ़ सकते हैं। सो डिजिटल सिटीजन के 9 एलिमेंट्स हैं और उसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे पहला है एजुकेट, जिसमें आता है डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल कॉमर्स। दूसरा है प्रोटेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में और डिजिटल हेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में। और तीसरा है रेस्पेक्ट, जिसमें हम डिजिटल एटिकेट क्या होता है, डिजिटल एक्सेस क्या होता है और डिजिटल लॉ के बारे में जानेंगे। तो ये जो 9 पिलर्स है, इसके बारे में हम गहराई से आगे और बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है डिजिटल लिटरेसी। तो अगर आपको डिजिटल माध्यम का यूज करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या साइबर स्पेस है या डिजिटल वर्ल्ड है, ये क्या चीज है और इसका आपको किस तरीके से उपयोग करना है। तो अभी तक जो हमने बात किया, जैसे कि साइबर स्पेस क्या होता है, डिजिटल क्वोशंट क्या होता है, डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है, ये सब उसी का एक जरिया है कि हम ये जानते हैं कि डिजिटल दुनिया क्या चीज है। और अगर हमें किसी और को भी समझाना है कि डिजिटल दुनिया क्या है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स उनको भी समझाने रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस जिसमें कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, वो डिजिटल लिटरेसी कहलाता है। दूसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं या हम व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आजकल आप वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और हमें लगता है कि कोई इंसान हमारे सामने ही बैठा है। तो ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और तीसरा है हमारे पास डिजिटल कॉमर्स, कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से आप कोई भी सामान खरीदते हैं या आप दुकान पे ही जाते हैं और वहां पे वो बार कोड लगा रहता है जहाँ पे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बिना अपने पर्स को टच किए, तो ये सब डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा है। तो ये सब चीजों की जब आपको जानकारी होगी तभी आप एक बेहतर तरीके से डिजिटल दुनिया का उपयोग कर पाएंगे और एक बेहतर डिजिटल सिटीजन बन पाएंगे। अभी हमने 3 पिलर्स की बात किया एजुकेट में। अब हम चौथे पिलर पे आते हैं जो कि प्रोटेक्ट कैटेगरी में आता है, जिसका है कि डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हमारे हक है और जिम्मेदारियां हैं, उनको अच्छे तरीके से हमें जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें उसको बरकरार भी रखना चाहिए कि हमारा जो हक है हमें वो मिले और दूसरों का हक है हम वो दे। तो ये चीज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये चौथा पिलर है डिजिटल सिटीजनशिप का। 5वां पिलर है डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस। अब जिस तरीके से हम कई बार हमें टोका जाता है या फिर कई बार हम अपने घर पे जो बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको हम टोकते हैं कि आप मोबाइल पे बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, आप मोबाइल का यूज कम करिए, या आप ये गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या फिर एक हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस लिमिट में हमें चीज को रोकना है। हमें पता है कि हर चीज हमारे उंगलियों में, हम बस कुछ भी टाइप करें, सर्च करें तो हमें हर चीज मिल जाती है। तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ये डिजिटल दुनिया में हम इतने खो ना जाए कि हम फिजिकल दुनिया के बारे में भूलकर डिजिटल दुनिया में ही जिए। तो डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस को हमें जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए और हमें खुद के भी और दूसरों के डिजिटल वेलनेस के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और 6 या छठा जो एलिमेंट है डिजिटल सिटीजनशिप का, वो है डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हम जब इतने ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं, तो इस पे कई सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे इंसानों को हम देते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो किस तरीके से हमें खुद को बचाना है कि ऐसी कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी कोई जानकारी ना दे जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति हमारा नुकसान कर पाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर हो, कोई भी हो, हमारा कोई नुकसान ना हो पाए। और वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन के साथ किसी और व्यक्ति का भी नुकसान ना करें। ये सब डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आता है। और अगर आप एक अच्छे डिजिटल सिटीजन हैं तो आपको डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारा तीसरी कैटेगरी है वो रेस्पेक्ट।
और हमारा जो 7th जो पिलर है डिजिटल सिटीजन का, वो है डिजिटल एटिकेट। कि कई बार हम जिस तरीके से हम बोलचाल वाली जो भाषा यूज करते हैं, बोलचाल वाली भाषा को हम टाइप करेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, और कई बार हम उस चीज को भूल जाते हैं और हम जो बोलचाल वाली भाषा है उसी में ऑनलाइन हम लिख देते हैं, परंतु काफी समय बाद जब कोई दिक्कत आती है, जब वो मैसेज दोबारा पढ़े जाते हैं, तब वो हमारे खिलाफ उसका यूज किया जा सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से जो भी हम ऑनलाइन में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें बहुत जांच परख के सोच समझ के हमें लिखना चाहिए। तो जो उस चीज के समझ है कि हमें किस तरीके से खुद को या खुद की कोई इन्फॉर्मेशन आगे दें या फिर कम्युनिकेट करें, उसकी जानकारी अगर आपको अच्छे तरीके से है, तो आप एक बेहतर डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। जो 8वां जो पिलर है वो है डिजिटल एक्सेस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के माध्यम से हमने सिम का यूज करके हम इंटरनेट यूज करते हैं और डिजिटल माध्यम का हम उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं है कि अच्छा लैपटॉप अगर हमें दिया जाए और एक वाईफाई कनेक्शन दिया जाए, तो हम शायद उसका यूज करना ना जानते हो। तो हमें खुद का जो डिजिटल एक्सेस है उसको हम किस तरीके से बढ़ा पाए, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना, और साथ ही साथ हम दूसरों को भी वो जानकारी देना कि किस तरीके से वो अपने जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है या जो टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है, उसके माध्यम से वो किस तरीके से डिजिटल दुनिया का एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना, वो एक अच्छे डिजिटल सिटीजन के गुण है। और जो हमारे लास्ट जो 9th एलिमेंट है डिजिटल सिटीजनशिप का, वो है डिजिटल लॉ, जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लीगली नहीं इलीगल है, वो ऐसे कोई भी एक्टिविटी में हम ना इन्वॉल्व हो, ना पार्टिसिपेट करें। और यदि हम हमारा कोई साथी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है जाने अनजाने में, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको समझाएं कि ये जो चीज आप कर रहे हैं ये गलत है और इसको आप रोक दें, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर कोई कंप्लेंट करे तो। डिजिटल लॉ की समझ होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज है जो लीगल है, कौन सी एक्टिविटीज इलीगल है। ये भी एक डिजिटल सिटीजन के गुण है। अब हम एक केस स्टडी में आते हैं। ये केस स्टडी किसी भी टीचर के साथ हो सकता है, और इनफैक्ट ये हमारे एक टीचर है जिनके साथ ये एक्चुअली में हुआ है। हमने उनका नाम और जो संस्था है उसका नाम हमने चेंज किया है। तो ये आप एक केस स्टडी पढ़ ले, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ, उसके बाद मैं किसी भी एक टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अनम्यूट होके इसको हिंदी में आप अनुवाद करके बताएं कि आप क्या समझ पाए हैं इस केस स्टडी से, और आप इनके जगह पे होते तो क्या करते। तो आपके पास 1 मिनट का समय है। हेलो। जी मैम। गरिमा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी सर, हाँ जी जी। sir, if I were in her place, I would not when they have asked for the payment of 35,000, so I will मैम सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन एक बार आप सिचुएशन को हिंदी में एक बार समझा पाएंगे कि क्या है, और उसके बाद आप अपने ओपिनियन दीजिएगा। हाँ जी सर, मेरी एक कलीग है आरती, उनको लेटर मिला उनके ईमेल बॉक्स में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम था NENOCEF। तो उसमें उस लेटर में कहा जा रहा था कि उनको नॉमिनेट किया गया है एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए, और उनको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो वो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको लगी, उन्होंने इमीडिएटली जो है वो साइट पे गई जो ईमेल मेंशन थी, और उनको वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो उन्होंने वो फॉर्म फिल कर दिया, और उसमें तुरंत ही आ गया कि आपको जो है कोर्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद उन्हें बोला जाता है कि उनको मलेशिया जाना है 3 दिन के लिए, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। उनको सिर्फ अपनी फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करनी है, और जो होटल स्टे और फूड है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा उनको।
तो आरती जो है वो अपनी टिकट्स तो बुक कर देती है और उनको ईमेल भी मिल जाती है उनके स्टे की होटल में, कि मतलब होटल और जो फूड है वो उन्होंने कर दिया है अरेंज। लेकिन इसमें जो है होटल जो है उनको 35,000 रुपीज, मतलब $500, जो अराउंड 35,000 रुपीज होते हैं, उनको एज अ डिपॉजिट मांग रहा है, जो उनको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर हर स्टे। तो अगर मैं आरती की जगह पे होती तो मैं क्या करती? तो जी मैम, बताइए मैम। हाँ जी, अगर मैं सर आरती की जगह पे होती तो जब उन्होंने 35,000 मांगा है, क्योंकि जैसे एक मेल कंफर्मेशन में हमें यही हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है, खाली एक मेल पे ही आप पहले आपने उसको फ्लाइट की पेमेंट कर दी, वो भी 3 डेज के लिए एकदम से ओरिएंटेशन, और एकदम से आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो जितना मैं आजकल की साइबर उसमें जानती हूँ, तो ये टोटली फ्रॉड ही होता है। 99.9% ये चीजें फ्रॉड ही होती हैं। और रिफंड वाला कि पहले आप पे कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए, ये वाला प्रोसेस तो कहीं होता ही नहीं है। लीगली ये कहीं भी नहीं होता कि पहले आप पे कीजिए और बाद में आपको रिफंड किया जाएगा। थैंक तो यू अगर मैं मैम। आरती की प्लेस में होती तो मैं इसको डेफिनेटली रिजेक्ट कर। जी, थैंक यू गरिमा मैम। और कोई टीचर बताना चाहेंगे वो क्या करते अगर वो आरती की जगह पर होते तो? सर इस कोई तरह भी की ईमेल को खोलना ही गलत है, क्योंकि कोई भी इस तरह का ऑफर आएगा भी तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू आएगा। तो उन्होंने इसको खोला, लिंक को खोलते के साथ ही काफी सारा डाटा उनका कॉपी हो गया होगा। तो इस तरह की जो ईमेल होती है फिर उनको खोलना ही सबसे बड़ा सब गलती है, पहली बात तो। थैंक यू अजय सर। बिल्कुल सही बात सर। मैं एक और टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना ओपिनियन दे, फिर हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। सर मैं भी यही कहूंगी कि इस तरह की मेल्स को खोलना बहुत हार्मफुल हो सकता है। इन मेल्स को खोलने से हमारा डाटा ही वो कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो ऑफर्स आते हैं, ये ऑफर्स रिलेटेड मेल्स को हमें कभी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए, ये मोस्टली फेक होते हैं। थैंक जी शाहीन मैम, आप भी एक लास्ट। साइबर क्राइम है एक तरीके से, और हमें इसका रिपोर्ट भी करना चाहिए, बट यूजुअली हम लोग करते नहीं है, हम इग्नोर करते हैं इन चीजों को। जी थैंक यू मैम। शाहीन मैम आप कुछ कह रही थी? यस सर, तो जैसा कि केस स्टडी में लिखा है कि शी रिसीव्ड अ लेटर इन हर ईमेल बॉक्स, नॉट अ लिंक। तो आई फील कि अगर एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चेक कर सकती हैं कि मे बी वो ट्रू भी हो। लेकिन सर नेक्स्ट पैराग्राफ में है शी वाज टोल्ड, यानी उन्हें ये कहा गया था कि 3 डेज की मलेशिया का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आप उसके लिए मतलब टिकट बुक करो और होटल और फूड जो है वो कंपनी देगी। तो अगर ये चीजें रिटर्न में होती या ऑफिशियल लेटर पैड पर होता तो एक मतलब एक कंफर्मेशन था कि हाँ जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने सेंड किया है, तो इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो आई थिंक ये जो डिपॉजिट उनसे बोला जा रहा है, ये इस बात पे बिलीव करना कि उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम मलेशिया में है, आई डोंट फील कि ये सही होगा। और मैं होती तो मैं उनसे जरूर ये कंफर्मेशन मांगती कि आप फर्स्टली में कोई एक लेटर या ईमेल कुछ भी सेंड करो, जिसके बेसिस पे अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होती तो मैं फर्दर कोई स्टेप ले पाती। थैंक यू मैम। मेरी ओपिनियन है जी सर। सर, इस तरह के लिंक जब भी क्रिएट किए जाते हैं, आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, वो अपनी फर्जी वेबसाइट सारा डाटा सब कुछ आपको सेंड कर देंगे। आप उसको मतलब ये लगेगा ही नहीं आपको कि डाउट है। आजकल बहुत सारे अखबार में आते हैं कि वैकेंसी निकल रही है, तो तरह तरह की इस तरह की वो पूरी वेबसाइट डिजाइन होती है, सारा डाटा उसमें मिल जाता है। जी थैंक यू सर। तो आप सभी टीचर्स ने बिल्कुल सही ओपिनियन बताया कि हमें नहीं करनी चाहिए, और आरती को भी वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस केस स्टडी के हिसाब से काफी सारे रेड फ्लैग्स है, या फिर काफी सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पे वो रुककर सोच सकती थी कि ये सही है या गलत। तो सबसे पहले उनके पास किसी भी दिन अनजाने में कोई मेल आता है, चाहे वो कोई भी संस्था से हो, सबसे पहली चीज उनको ये सोचनी चाहिए थी कि क्या मैंने इसके लिए अप्लाई किया है कभी कि नहीं। अगर समझ लीजिए आप सभी टीचर्स को आज एक ईमेल आ जाए कि आपने फॉर्म भरा था और आपके इस दिन एग्जाम है, तो आप तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि मैंने तो ये फॉर्म भरा ही नहीं, तो मेरा नाम कैसे आ रहा है।
तो वही चीज आरती को भी करनी चाहिए थी कि कोई भी संस्था उनको ईमेल करे तो वो ईमेल क्या सोच कर करेगी। आपने कुछ अप्लाई किया था या फिर डिपार्टमेंट ने आपको कहीं नॉमिनेट किया था कि ये आरती जी हमारे काफी अच्छी टीचर है, इनको आप प्लीज रख लीजिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो यही पे उनको रुक जाना चाहिए था कि ये ईमेल क्यों आया मेरे पास जबकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। दूसरी चीज, नैनोनैफ नाम की संस्था की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें वो जाके चेक कर सकती थी कि मलेशिया में ऐसी कोई ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं कि नहीं। अगर वो करवा रहे हैं तो उनकी एक ईमेल आईडी नीचे जरूर दी गई रहेगी और उनको आपको ईमेल करके वो पूछ सकती थी कि मुझे ऐसा एक ईमेल आया है इस ईमेल आईडी से, तो क्या ये सही है या गलत है, वो उनसे कंफर्मेशन ले सकती थी। और तीसरी चीज, कई बार फ्रॉड जो करना चाहते हैं वो फर्जी ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे कि nanonef@gmail.com, ऐसी कोई ईमेल आईडी नहीं होगी। तो ऑफिशियल ईमेल आईडी से जैसे कोई भी हो, जैसे training@nanonef.org या nanonef.in, ये ऐसी वेबसाइट्स है जो जेन्युइन हम मान सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आप ईमेल आईडी चेक करते जिससे वो आया है, जहां पे आपने वो डिटेल्स भेजी है, तो वो भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे कि वो सही है या गलत है। चौथी चीज ये है कि आपको मलेशिया आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको टिकट बुक करने से पहले उनसे ये कंफर्मेशन लेना चाहिए था कि जैसे शाइन मैम ने बताया कि हमें उनसे रिटर्न में कंफर्मेशन लेना चाहिए लेटर पैड में कि आप ये रिफंड करेंगे, लेकिन वो वर्बली उनसे बात हुई थी और वो नहीं कंफर्मेशन ले पाई, जिसकी वजह से उनका शायद फ्लाइट की टिकट जो बुक किए हैं वो भी शायद उनको कभी रिटर्न में ना मिले। सर आप जी प्लीज मैम। शोभा मैम को बोलिए थोड़ा अपना कैमरा या तो ऑफ कर दे वो। शोभा मैम। विशाल एक बार आप देख लेंगे विशाल, एक बार आप। जी ठीक है, थैंक यू मैम। सो तो अगर वो ये सब चीजें अगर पहले से अगर देख लेती है, जांच परखती, तो शायद उनको इतने पैसे का नुकसान नहीं होता और वो साइबर क्राइम की एक विक्टिम नहीं होती। तो अगर हमारे पास भी ऐसा कोई ईमेल आईडी से मेल आता है कि आपको जीत गए हैं या फिर आपके पास ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप ये चीज आप कर सकते हैं, उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे और आपसे बाद में पैसा मांगा जाए, तो आप समझ जाइए कि ये कुछ ना कुछ इसमें फ्रॉड होना है और इसको मुझे बहुत जांच परख के ही इस ईमेल आईडी पे या इस इंसान को मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। सो अब हम इस उदाहरण के साथ हम आगे बात करेंगे ऑनलाइन रिस्क के बारे में कि ऑनलाइन रिस्क क्या है, किस तरह के ऑनलाइन रिस्क होते हैं और हमें उसमें से खुद को किस तरीके से बचा कर रखना है, या फिर हम अपने जो स्टूडेंट्स या बच्चों को उनको किस तरीके से हमें समझाना है कि वो भी इन सब चीजों से बचे रहे। तो इसमें सबसे पहला एक शब्द है साइबर बुलिंग। किसी भी टीचर को साइबर बुलिंग क्या है या उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सुना हो, कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई भी टीचर बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर या अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सीमा मैम। सर जैसे बुली हम बच्चों को बुली कुछ स्कूल में भी होते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, तो सर वहीं पर हम अगर साइबर बुली को देखें कि साइबर के द्वारा या कुछ भी हम जो यूज कर रहे हैं नेट, उसके थ्रू किसी को परेशान करना। सर लोकेश बताना चाह रहे हैं। जी सर बताइए। साइबर बुलिंग का मैंने अभी पढ़ा है वो फॉर्म फिल करते समय। इसका मीनिंग है सर किसी को भी ऑनलाइन हरेसमेंट करना विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। थैंक यू लोकेश सर। बस एक जी आंचल मैम। सर साइबर बुलिंग मतलब जैसे पिक्चर्स वगैरह भी डालते हैं तो उन पिक्चर्स का मिसयूज करते हैं काफी लोग, फिर जैसे ब्लैकमेल करते हैं जो भी रहता है, दैट इज आल्सो कम इन साइबर बुलिंग। जी थैंक यू मैम। श्वेता हम सारे पॉइंट्स को एक साथ लेके आ सकते हैं, देन फिर मैं समझाता हूँ।
जी, थैंक यू। सो आप सभी टीचर्स ने बिल्कुल सही बताया और आई गेस सारे पॉइंट्स हमारे कवर भी हो गए हैं। सो बुलिंग मतलब किसी को आप धमकाना या आप किसी को हैरास करना। तो साइबर बुलिंग मतलब अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन माध्यम से आप किसी को धमका रहे हैं या फिर उसको हैरास कर रहे हैं, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। तो उसके कई-कई चीजें, जैसे कि आप किसी को मैसेज के थ्रू बुली करना, या चाहे वो बहुत ही या फिर वो गाली देकर हो, या फिर आप किसी को हैरास कर रहे हो कुछ बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये भी एक साइबर बुलिंग का हिस्सा है। जैसे मैम ने बताया कि हम फोटोग्राफ्स के थ्रू, कि हमने किसी का चेहरा हमने फोटोशॉप के थ्रू एडिट करके हमने किसी और के चेहरे में लगा दिया और हम उनके थ्रू उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो भी साइबर बुलिंग आता है। और कई बार हम सोशल मीडिया में कुछ अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं और जिसके ऊपर काफी सारे लोग या तो उसकी बुराई करते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, या मैं इसके खिलाफ हूँ, आप हमारे विरुद्ध है या ऐसा है। तो ये सब चीजें भी साइबर बुलिंग में आता है। और फिफ्थ है इमोशनल हैरासमेंट, जिसमें कि आपको ये सब चीजों से भले ही आपको नुकसान ना हो, लेकिन एक आपके जो मन में जो डर बैठाया जाता है कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो मेरे खिलाफ लोग या कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो सकता है। तो ये सब भी एक साइबर बुलिंग का हिस्सा है। तो आई नो आजकल ये जो शब्द है साइबर बुलिंग, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स और बच्चे जो साइबर टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, कई बार वो ये चीज नहीं सोचते हैं। किसी की अगर अपने फ्रेंड के हम फोटो में हमने कुछ कमेंट कर दिया, ये सोचकर कि ये हम हंसी मजाक में कर रहे हैं, और कई बार वो जो व्यक्ति जिसके फोटो में कमेंट किया गया है, वो उसको पढ़कर वो गलत मतलब निकालता है या कुछ और मतलब निकालता है। तो ये सब चीजें भी साइबर बुलिंग में आती हैं, जिसमें कि हम कई बार अनजाने में ही सही हम किसी को बुली कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये हमारा हक है, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं ऑनलाइन में। तो अगर आप एक अच्छे डिजिटल सिटीजन हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिजिटल जो आपकी लिमिट है या आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या है, और आपको क्या एटिकेट्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो उम्मीद है सभी टीचर्स को साइबर बुलिंग क्या है वो समझ आ गया रहेगा। अब हम दूसरे ऑनलाइन रिस्क के बारे में जानेंगे, जो है साइबर स्टॉकिंग। तो टीचर्स नहीं, श्वेता हम ये बैक कर सकते हैं। सो स्टॉकिंग शब्द से टीचर आप लोग क्या समझते हैं? स्टॉकिंग एक बहुत एक कॉमन एक वर्ड है जो हम आजकल सुनते भी हैं न्यूज वगैरह में। तो कोई टीचर बताना चाहेंगे स्टॉकिंग क्या है? Yes. Stalking means harassing. ठीक है मैम। और कोई टीचर कोई और पॉइंट बताना चाहेंगे स्टॉकिंग क्या है? आचल मैम आप म्यूट हो गए हैं, आप कुछ कह रही थी। ठीक है, और कोई टीचर कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? ठीक, जी शाइन मैम। सर जब अनवांटेडली और रिपीटेडली जब आप किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के द्वारा आपका सर्विलांस या पीछा किया जाए, दैट इज स्टॉकिंग। बिल्कुल, शाइन मैम ने अगर जी और अगर इसको ऑनलाइन देखा जाए तो आजकल हम ट्रोल करना कहते हैं कि किसी एक अकाउंट या किसी एक इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी को जब आप टारगेट करके कंटिन्यूअसली उनको स्टॉक करते हो अलग अलग आईडी से अलग अलग लोगों के थ्रू। जी, थैंक यू शाइन मैम। सो शाइन मैम ने जो डेफिनेशन बताया वो बिल्कुल सही है कि स्टॉकिंग का जो मतलब है वो, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ, वो तो है पीछा करना। अगर आप किसी व्यक्ति का पीछा करते हैं, जैसे कि वो घर से कब निकला, वो कौन सा रास्ता लेता है ऑफिस जाने के लिए या फिर मार्केट जाने के लिए, मार्केट जाता है तो क्या क्या चीजें खरीदता है रोज, और किस समय जाता है किस समय आता है, कब घर पे कौन कौन रहते हैं, तो ये सारी चीजें स्टॉकिंग में आ जाती है, जिसमें कि आप एक इंसान की रोज की जिंदगी के बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसका पीछा करके। Sir, I want to ask. जी मैम, Sorry. जी मैम। जैसे जब फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं,
जैसे किसी भी टारगेट को मतलब टारगेट होता है उसे फॉलो करने के लिए जो फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं या उसको हाईजैक कर लेते हैं या उसी को रिपीटेडली मैसेज करते हैं, तो आई थिंक दैट विल आल्सो कम अंडर दिस स्टॉकिंग। मैम वो साइबर बुलिंग में आएगा, जहाँ पे कि आप किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए अलग अलग आईडी से उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो आप मैसेज के थ्रू हो या कोई और हरासमेंट के थ्रू हो, तो वो साइबर बुलिंग में आता है। लेकिन साइबर स्टॉकिंग थोड़ा अलग है, जिसमें कि आप किसी इंसान का पीछा कर रहे हैं और अगर आप साइबर स्टॉकिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उससे आप किसी इंसान को हरास कर रहे हैं, देन वो साइबर बुलिंग में आ जाता है। तो स्टॉकिंग में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग, मतलब उसी एक पर्टिकुलर पर्सन या टारगेट ग्रुप के पीछे हम मतलब उसको मैसेजेस करके या किसी भी फॉर्म में उसको हम उसी को फॉलो कर रहे हैं बार बार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साइबर स्टॉकिंग में हम ओके सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अब उस इंफॉर्मेशन से हम अगर उस किसी इंसान को हरास कर रहे हैं, नुकसान करते हैं, देन वो साइबर बुलिंग में आ जाता है। ओके 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 जी। सो साइबर स्टॉकिंग में श्वेता हम सारे पॉइंट्स एक साथ लेके आ सकते हैं। तो जिस तरीके से हम ऑनलाइन माध्यम में किसी का पीछा करें, अब जैसे उदाहरण सहित हम एक सिंपल चीज जो हम करते हैं वो है व्हाट्सएप में एक फीचर है जिसमें कि नीला टिक आता है डबल, राइट। अगर आपने कोई मैसेज भेजा, अगर दूसरे व्यक्ति ने वो पढ़ लिया तो वो डबल टिक आता है, जिससे हमें समझ पाते हैं कि अच्छा इन्होंने वो मैसेज पढ़ लिया है। और कई बार कई लोगों के अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट में लास्ट सीन का ऑप्शन भी लिखा आता है, जिसमें कि वो व्यक्ति कब व्हाट्सएप उन्होंने आखिरी बार यूज किया, वो टाइमिंग वो टाइमिंग भी हम देख पाएंगे। तो ये एक छोटा अगर मैं एग्जांपल दूं साइबर स्टॉकिंग के बारे में, तो ये एक माइन्यूट लेवल पे जो हम में से भी कोई ना कोई देखते होंगे कि दूसरे की जानकारी निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं एक्चुअल साइबर स्टॉकिंग की बात करूं तो वो काफी एक बड़े लेवल पे होता है, जहां पे कि आप एक व्यक्ति को डिजिटली वो क्या करता है दिन भर, हर चीज मॉनिटर करते हो, चाहे वो कब फेसबुक में ऑनलाइन आया, कितने टाइम के लिए बैठा, वो उसने क्या क्या पोस्ट शेयर किए, क्या क्या चीजें लाइक की, कौन से सोशल मीडिया पेजेस में उसने कमेंट किया, या कितने उसके फ्रेंड्स हैं, वो लॉग आउट कब होता है, या आप ईमेल किसको करते हैं, या आप अमेजोन में जाते हैं तो अमेजोन में क्या क्या चीज आप सर्च करते हैं। तो डिजिटल माध्यम में जब भी हम कुछ चीज करते हैं तो हम अपनी पसंद की चीजें ही करते हैं। तो हमारी पसंद नापसंद, हमारे डेली रूटीन शेड्यूल टीचर्स सॉरी एक मिनट मैं लेना चाहूंगा आपका। जी। तो हम किस तरीके कौन से वो वेबसाइट विजिट करते हैं, क्या क्या चीजें वो एक्सेस करते हैं, हर चीज जब हम स्टॉक करते हैं उसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसका हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं, किसी का नुकसान करने के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण सहित अगर मैं किसी का व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करूं और हर रोज चेक करूं और मुझे समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति रात के 10 बजे ही आखिरी बार ऑनलाइन आता है, तो मैं उससे ये अंदाजा लगा पाता हूँ कि अच्छा ये 10 साढ़े 10 के आसपास ये व्यक्ति सो जाता है। और अगर जब वो सोता है तो अगर मैं कोई चोर हूं तो मैं उनके घर पे कब मुझे एंटर होना है, ये सारी चीजें मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। तो वो साइबर बुलिंग में नहीं आता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब वो इकट्ठा करते हैं उस इंफॉर्मेशन का वो व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, जिससे कि किसी का भी वो नुकसान कर सकता है। या दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आजकल काफी बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन में हर एक चीज डालते हैं कि वो क्या खाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A to Z चीजें। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अब समझ लीजिए मैं नैनीताल घूमने गया, मैंने नैनीताल की फोटो डाली और नैनीताल में खुद की सेल्फी लेकर मैंने डाली कि मैं इस लेक के पास हूँ और नैनी लेक के पास हूँ और मैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा हूँ। और काफी सारे लोग हम में से भी करते हैं, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा करते हैं, यंगस्टर्स।
तो उससे एक चीज ये हो सकता है कि अगर कोई भी स्टॉकर हो, कोई भी व्यक्ति हो जो बच्चों का नुकसान करना चाहे, अगर वो नैनीताल लोकेशन सर्च करे और नैनीताल में किस किस ने फोटो डाली है वो देख पाए, तो वो ये समझ पाएंगे अच्छा ये व्यक्ति दिल्ली से नैनीताल आए हैं और नैनीताल की इस रेस्टोरेंट में है, अगर मैं उसके साथ कुछ अगर मुझे कुछ मेरा फायदा करना है तो मैं कुछ गलत चीजें कर सकता हूँ उसके साथ, चाहे उसको मुझे पता है कि ये व्यक्ति नया है इस लोकेशन में और उसके पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है नैनीताल के बारे में, तो मैं उसको कुछ चाहे उससे चोरी करना हो या किडनैपिंग हो, काफी सारी चीजें उसके साथ हम कर सकते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग से जो डिजिटल माध्यम में जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसका कोई भी कुछ भी उपयोग कर सकता है, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स हो या हम अपने बर्थडे, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बैंक जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिलता है उसमें हम जो पिन होता है 4 अंकों वाला, वो हम अपने बर्थ डेट या एनिवर्सरी या फिर अपने बच्चे का बर्थडे वो डालते हैं। तो अगर हम फेसबुक में हम अपना बर्थडे के दिन हम फोटो डालें कि आज मेरा जन्मदिन है और हमने सेलिब्रेट किया, और कोई साइबर हैकर को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी मिल सकता है, तो दोनों तरीके से वो दोनों को एक्सेस करके आपके बैंक से फाइनेंशियल आपके नुकसान वो करवा सकता है। तो साइबर स्टॉकिंग से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है जिसके थ्रू आपका नुकसान वो कर सकते हैं। किसी भी टीचर को कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है श्वेता, हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा जो हमारे जी जितेंद्र सर। जी सर। सर जो साइबर स्टॉकिंग है इसमें सर हम क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कोई हमारे खिलाफ ऐसा करता है तो? सर इसके बारे में साइबर क्राइम और उसके रिपोर्टिंग के बारे में हम आखिरी दिन मतलब 4th डे में हम उसके बारे में काफी, हमारा 1 घंटे का सेशन है, उसमें हम काफी डिटेल में जानेंगे। अभी बस हम ऑनलाइन रिस्क के बारे में समझना चाहते हैं कि ऑनलाइन रिस्क क्या होते हैं और इससे बचना कैसे है, इसके बारे में हम आगे 3 दिन में बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, अब बात करते हैं हैकिंग के बारे में। हैकिंग शब्द तो सबने सुना ही होगा, तो कोई भी एक टीचर बस अपना हैकिंग का जो डेफिनेशन है या वो क्या समझते हैं वो बताएंगे, उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई भी टीचर बताना चाहेंगे? करना, हाँ जी जी मैम। हैक करना मतलब जो भी आपकी किसी ने प्रोफाइल हैक कर ली है, उसका मिसयूज करा, आपकी आईडी हैक कर लिया, या जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी उनकी साइट्स हैक कर लेते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी उस पर पोस्ट करते रहते हैं या उसका मिसयूज करते हैं, एनीथिंग। जी थैंक यू आंचल मैम। तो हैकिंग का अगर जी सविता मैम आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कहना चाहूंगी अभी रिसेंटली हुआ है ये मेरे हस्बैंड के साथ। उनकी जो फेसबुक पर जो आईडी थी उसको किसी ने हैक कर लिया और वो हमारे रिलेटिव्स जो हैं उन्हीं से ही वो मनी के लिए बोलने लग गए कि मुझे मनी चाहिए, आप मुझे हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, मतलब कई जो रिलेटिव्स थे। फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तब फिर वो हमने फेसबुक पे ही उसको लिख के डाला कि भाई आईडी हैक हो गई है, तो प्लीज ऐसा कोई मैसेज आए तो उस पर ध्यान ना दें। तो आई थिंक ये एग्जांपल है हैकिंग का। थैंक यू मैम। जी जी मैम सविता मैम, आपने एग्जाम्पल तो अच्छा दिया है मैम। एक्चुअली में इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन हैकिंग होती क्या है वो चीज मैं जानना चाहता था कि ये तो उदाहरण हो गया, लेकिन हैकिंग का डेफिनेशन क्या है, आप समझते क्या है हैकिंग से? ओके सर, ओके जी। तो सविता मैम ने बताया और शायद अर्चना मैम ने भी बताया कि हैकिंग यानी हम किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसकी जानकारी के बिना जब हम एक्सेस करते हैं, जब हम उसको उस इंफॉर्मेशन को हम निकाल लेते हैं बिना किसी की जानकारी के, उसको हम हैकिंग कहते हैं। तो हैकिंग आप और मैं नहीं कर सकते, वो जिसको सॉफ्टवेयर की जानकारी हो, जो ये सब इंफॉर्मेशन की कोई भी सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी कोडिंग क्या होती है, ये सब चीजें जिसको जानकारी हो वो ही हैक कर सकता है। आप और मैं हैक नहीं कर सकते। तो हैकिंग बहुत एक टेक्निकल चीज है जिसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन बिना किसी इंसान की जानकारी के उससे निकाली जा सकती है। और आजकल उम्मीद है शायद
टीवी में काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि व्हाइट हैट जूनियर के आप कोडिंग क्लासेस करिए, आप हैकिंग व्हाइट हैट हैकिंग कर सकते हैं। तो हैकर्स भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है व्हाइट हैट हैकर्स, जैसे व्हाइट यानी हम यूजुअली हम अच्छी चीजों के लिए व्हाइट कलर देते हैं। जो अच्छे हैकर्स होते हैं, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, उनको हायर करके ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, आप हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर में जांच परख के आप ये बताइए कि हमारे सॉफ्टवेयर में कमियां क्या है, जिसके माध्यम से हम उसको सुधार पाए और जो बुरे हैकर्स है वो हमारी जो यूजर्स है या हमारी कंपनी का डेटा है वो एक्सेस ना कर पाए, तो वो व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि बुरे हैकर्स होते हैं, जो कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर उससे खुद का फायदा करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो या पर्सनल डेटा हो या जो भी हो, उससे वो खुद का फायदा करने के लिए और दूसरे का नुकसान करने के लिए वो हैकिंग करते हैं। और तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर, जिसमें कि अब जैसे मैं एक हैकर, मैंने कंपनी की वेबसाइट को हैक किया और मैं चाहूँ तो उस डेटा को बुरी चीजों के लिए भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया कि देखिए मैंने आपकी कंपनी का वेबसाइट मैंने हैक किया है, पर अगर आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से हैक किया है, ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव लाके उस लूप होल को या फिर उस कमी को आप सुधार सकते हैं। तो वो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स भी ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो नीयत होती है, जो इंटेंशन होती है, वो किसी का बुरा नुकसान करना नहीं होता है, लेकिन वो बता देते हैं, लेकिन उसका वो फाइनेंशियल गेन उम्मीद करते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स ये होता है। तो हैकर जैसे मैम ने बताया कि हैकिंग के थ्रू उनके सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो गए थे, तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। श्वेता, हम क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स। ये पिछले 1.5-2 सालों में जितने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स हुए हैं, शायद हम पिछले 10 साल के अगर डेटा को एक साथ जोड़े तब भी शायद उससे ज्यादा ही होंगे पिछले 2 साल में जो हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमें डिजिटल माध्यम की ज्यादा जानकारी नहीं थी और हम अचानक ही कोविड के टाइम पर डिजिटल पेमेंट्स शुरू करने लगे, और जिसका फायदा हैकर्स या फ्रॉडस्टर्स उठाने लगे। तो डिजिटल पेमेंट की कौन से फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा और आगे गहराई में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उसमें है यूपीआई फ्रॉड। यूपीआई क्या होता है, कोई टीचर बताना चाहेंगे? क्या बहुत ही कॉमन चीज है जो आजकल हम यूज करते हैं। यूपीआई क्या चीज है या यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। जी जी पवन सर, आप कुछ बता रहे थे आप? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यूपीआई। सर ऑनलाइन पेमेंट जो हम करते हैं उसमें वो एक पेन के थ्रू वो यूपीआई है आई थिंक। जी सर, गूगल गूगल पे, पेटीएम इस टाइप से हम यूज करते हैं, उसमें यूपीआई का ही होता है। जी थैंक यू मैम। कंचन मैम, आप कुछ कह रहे थे? सर यही कह रही थी मैं भी। I think unique payment identification. जी अजय सर, उसका फुल फॉर्म में बोलूं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके। ये बेसिकली जैसे मैम ने बताया कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे यूपीआई कैटेगरी में ही आते हैं। तो जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। तो इसके भी काफी सारे फ्रॉड आए हैं, जहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति का पैसा किसी और ने चुरा लिया यूपीआई फ्रॉड के माध्यम से। तो किसी ने ऐसा कोई केस सुना है या किसी ऐसा कुछ केस हुआ है जहाँ पे यूपीआई के थ्रू, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू किसी के पैसे निकाले गए हो बैंक से और उनके साथ फ्रॉड हुआ हो, या आपने किसी और अपने साथी का या रिलेटिव का ऐसा कोई केस सुना हो? हेलो कोई जी सविता मैम।
सर वो एक्चुअली मैंने अभी सुना था लास्ट ईयर क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट करते हैं ना, उसको स्वाइप करते हैं कार्ड को, तो उसमें किसी ने फ्रॉड किया था। एक मेरे रिलेटिव हैं, उनकी 1 लाख उसमें से मतलब उन्होंने ट्रांसफर कर लिए थे, कुछ ऐसा हुआ था। तो ये मैंने सुना था सर। थैंक यू सविता मैम। और किसी टीचर के साथ ऐसी कोई किस्सा हुआ है या उन्होंने किसी और का सुना हो? चलिए मैं कुछ एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक साथी के साथ हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन में एक बाइक वो सेल कर रहे थे। तो उन्होंने बाइक सेल का कुछ काफी कम रकम डाली थी, करीब उन्होंने 50,000 की कोई वो बाइक दे रहे थे और वो भी ब्रांड न्यू। तो मेरे साथी ने बोला कि मुझे बाइक परचेज करनी है, तो आप ये बाइक आप आके देख लीजिए, पर एडवांस से आपको इतने रुपये देने होंगे ताकि मैं आपको कंफर्म कराऊं कि आप ओरिजिनल इंसान है या फिर कोई फ्रॉडस्टर है। तो मेरे साथी ने अनजाने में उसने जो लिंक भेजा उस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही उसके बैंक के जितने भी पैसे थे वो सब चले गए उस व्यक्ति के खाते में। और उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया उस व्यक्ति ने, और जब ये मेरे साथी ने जब उनको फोन करने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद से उनसे बात ही नहीं हो पाई। तो ये तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी कम्युनिकेशन माध्यम से, चाहे वो SMS हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, के माध्यम से कोई भी अनजान लिंक भेजता है जिसका आपको पता नहीं कि इसको क्लिक करने पे क्या होगा, और अगर आपके फोन में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या आपके बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होते हैं, वो इंस्टॉल्ड है, और अगर गलती से आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो काफी बार ऐसा होता है कि वो आपके खाते में जितने पैसे हैं वो आप ऑटोमेटिकली वो उस लिंक के थ्रू जो हम साइबर क्रिमिनल है उसके बैंक में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फोन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या और कोई भी यूपीआई ऐप हो तो आप अनजान व्यक्ति के भेजे गए लिंक्स को क्लिक ना करें। इवन SMS जो हमें आते हैं प्रमोशन की, आप इतने लाख रुपए जीत गए, इस लिंक पे क्लिक करें, कभी क्लिक मत करना, क्योंकि ये सब फ्रॉड एक्टिविटीज का जरिया है और वो खुद चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में क्लिक करे और उनके पास वो सारे पैसे पहुंच जाए। दूसरा एक फ्रॉड का तरीका है KYC, जिसमें कि नो योर कस्टमर, जिसमें बैंक आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा, ये बोलेगा कि मैं इस बैंक से हूँ और आपका बैंक अकाउंट आज रात को बंद हो जाएगा अगर, और आपके पैसे जितने बैलेंस है वो 0 हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप KYC कराएं। और KYC के लिए वो बोलेंगे कि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करिए, अपना आधार कार्ड बताइए और ये सब चीजें, और लास्ट में बोलेगा कि आपके फोन में एक OTP आएगा, OTP आप बताएंगे तभी आपका KYC पूरा होगा। तो जैसे ही आप वो OTP बताएंगे, आपके बैंक पे जितने पैसे होंगे वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉड या साइबर क्रिमिनल के पास चले जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको फोन पे OTP मांगता है तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड या क्रिमिनल एक्टिविटीज से ही जुड़ा होगा। तीसरा है रिमोट एक्सेस फ्रॉड, जिसमें कि आपका समझ लीजिए फोन अगर हैंग हो रहा है या फिर आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है और आपसे कोई कंपनी बोलती है कि नहीं आप एक काम करिए, आपके फोन का एक्सेस हम ऑनलाइन ले लेंगे और आपके फोन को हम जो स्लो हो रहा है उसको हम ठीक कर देंगे। तो क्या करेंगे, वो आपके फोन का जो एक्सेस है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ले लेंगे, उसमें भी कुछ OTP और ये नंबर वगैरह होता है। जब जैसे ही आप वो नंबर देते हैं आपके फोन का पूरा एक्सेस उनके पास चले जाता है, तो वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी SMS भेज सकते हैं या SMS पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पढ़ सकते हैं, आपके बैंक जो अकाउंट जो आपने ऐप्स इंस्टॉल किए अपने फोन में उसको वो खोल कर देख सकते हैं और आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, कि उसको रोक नहीं पाएंगे। तो रिमोट एक्सेस फ्रॉड भी बहुत होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई कंपनी हमारी हेल्प करना चाहती है लेकिन वो हेल्प के माध्यम से हेल्प करने के बजाय हमारा नुकसान कर देती है। तो ये भी, इससे भी हमें बचकर दूर रहना है। और चौथा है सोशल मीडिया फ्रॉड। जैसे सविता मैम ने बताया कि कोई उनके रिलेटिव थे जिनके नाम पे वो ID थी और या तो उसको हैक कर लिया गया या फिर उनके ही फोटो यूज करके कोई नई ID बनाई गई और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको मैसेज किया जा रहा था कि मैं कोई बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ,
मुझे इतने रुपए चाहिए और अगर आप रुपए नहीं देंगे तो मैं जेल चले जाऊंगा या फिर मुझे मेरा ये नुकसान हो जाएगा। तो काफी बार इंसान रिश्तेदारी के नाते ये सब भूल जाता है कि ठीक है, इनका हम मैं मुझे इनका मदद करना पड़ेगा और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने रिश्तेदार की मदद करूं, और वो पैसे भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। तो जैसे ही राजी होते हैं वो जो साइबर क्रिमिनल है वो अपना अकाउंट देता है, अगर जैसे ही आप उसमें पैसे भेजेंगे तो वो आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। तो सोशल मीडिया में यदि आपके कोई भी जान पहचान के व्यक्ति अचानक आपको अनजाने में मैसेज करे और आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही उससे बात करिएगा और कंफर्म जरूर करिएगा कि ये आप वही व्यक्ति हैं, ऐसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि सिर्फ आप और वही जानते हैं। जैसे हम कब मिले थे पिछली बार, आप बताएं। तो अगर वो बता पाएंगे तो ठीक है, हम समझ पाएंगे कि हाँ ये जेन्युइन है। अगर नहीं बता पाएंगे तो आप समझ जाइए किसी ने हैक किया हुआ है और कोई अनजान व्यक्ति आपसे पैसे लेने के लिए उनकी आइडेंटिटी चुरा कर आपसे बात कर रहा है। सर मैं कुछ जी पूछना चाहती हूँ। जी मैम। सर मतलब काफी फ्रेंड सर्कल में और वैसे भी काफी इनसे सुना है मैंने, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट यूज करो, फोन हो लैपटॉप, तो उसमें आपके फोन में जो डाटा है या पासवर्ड है कुछ भी है वो सिक्योर रहता है। मतलब तो क्या ये चीज सच में सही है या नहीं, मतलब ये जानना चाह रही हूँ मैम ये जो एंड्रॉइड डिवाइस है और उसके जो प्रोटेक्शन के बारे में हम कल बात करेंगे एक्चुअली में काफी डिटेल में। कल का हमारा 2 घंटे का सेशन इसी के ऊपर है कि हम खुद के जो डिवाइस है, चाहे लैपटॉप हो फोन हो, उसको किस तरीके से हम सिक्योर कर पाए, सेफ रख पाए। तो उसमें काफी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत शॉर्ट में मैं बताऊं तो एप्पल के जो फोन्स है उसमें वायरस नहीं आता है, लेकिन हैक वो भी हो सकता है। हैक करने के लिए आप हैक तो कोई भी मोबाइल हो सकता है, चाहे वो एप्पल का हो या फिर एंड्रॉइड हो, लेकिन वायरस नहीं आता है। वो उसका कारण भी मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यों नहीं आता है। जी ठीक है, थैंक यू। सर एक टाइमिंग एक्सक्यूज मी सर। जी अजय सर, आप कुछ बता रहे हैं। सर ये टाइमिंग आपकी थोड़ी ज्यादा गड़बड़ कर दी है। 12:30 से 1 का जो टाइम है बीच का, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जाते हैं और सेकंड वाले आते हैं, तो या तो टाइम 10:30 से 12:30 होता है। जी सर, इसके बारे में एक बार मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कॉल के बाद। अभी सर फिलहाल हम 5 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, 1 बजे तक हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके जी ठीक है। तो ऑनलाइन मैम आप कुछ कहना चाहती हैं सीमा मैम? जी सर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सर कोई लिंक आएगा जिसमें हमें कोई भरना है फॉर्म अटेंडेंस के लिए आज की? जी 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 मैम आएगा भी मैम, 1-2 मिनट और रुक जाइए, लास्ट स्लाइड है हमारा, इसके बाद आपके पास फॉर्म थैंक यू आएगा। सो मच। जी तो जो हमारा 5वां ऑनलाइन रिस्क है वो है ऑनलाइन एडिक्शन, जिसमें चाहे आप सोशल मीडिया ऑनलाइन आप ज्यादा यूज करते हैं, या यूट्यूब में आप ज्यादा वीडियोस देखते हैं, या टिकटॉक जो पिछले साल बैन हुआ उसमें काफी सारे लोग दिन भर बैठकर वो देखते रहते थे उसमें वीडियोस। चाहे वो बच्चे जैसे आजकल ऑनलाइन गेम खेलते हैं, चाहे वो पबजी हो या और कोई कैंडी क्रश, ये सारे गेम्स जो काफी सारे एडिक्टिव गेम्स है, इसमें ये भी एक ऑनलाइन रिस्क है। और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कोई व्यक्ति ज्यादा एडिक्ट हो रहा है किसी चीज में, तो उसको समझाना चाहिए कि ये ज्यादा आप एडिक्ट हो रहे हैं और आपको उससे थोड़ा समय दूर रहना आपके लिए जरूरी है। ये ऑनलाइन एडिक्शन भी एक रिस्क है। और लास्ट है जॉब रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड, जिसमें कि कई बार आपके पास वेबसाइट से आता है कि आपका जो प्रोफाइल है या आपके जो सीवी है, इस जॉब के लिए हमने शॉर्टलिस्ट किया है। आप सिंस आप गवर्नमेंट सर्विस में तो आपको शायद ना आए, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनके पास काफी सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं, क्योंकि वो कई बार काफी सारे वेबसाइट्स में जॉब एप्लीकेशन डालते हैं, तो उनके पास काफी सारे वेबसाइट से आता है कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 1000 रुपए देने रहेंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई एलिजिबल हो पाएंगे, आप दे पाएंगे। तो ये भी काफी जॉब रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड है जो चल रहा है। ये मेरे काफी सारे साथियों के साथ भी ऐसे ईमेल्स आए हैं, बट किस्मत से उन्होंने वो इस झांसे में नहीं आए कि वो उनके साथ
ऑनलाइन क्राइम हुआ हो, उन्होंने उस ईमेल को उसी समय डिलीट भी कर दिया। और उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे जब भी आपके पास कोई भी कंपनी से आए जहाँ पे आपने अप्लाई नहीं किया है। आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रही है जब मैंने अप्लाई ही नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको जांच परख कर ही उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। मैं चैट बॉक्स में एक दो चीजें देख पा रहा हूँ कि शायद